Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 4 for the course of Steel Structures. This course is generally for BS Civil Engineering Technology. I myself engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 4 and week number 4. So in our today's lecture we will discuss about the analysis and design of tension members. तो टेंशन मेंबर्स कौन से होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, और उनको हम किस तरह से एनालाइज और डिजाइन करते हैं. So these are your reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं. Now summary of the previous lectures. In this course, first of all, we discuss about steel, how steel is manufactured by using different types of alloys. उसके बाद हमने कुरान पाक का जिक्र किया कि आयरन का कुरान शरीफ में भी जिक्र है. Then we discussed about the steel treatments, making and manufacturing processes which are affecting the properties of steel. उसके बाद हमने different types of structural steel के जो shapes पढ़े, built up sections discuss किए, modern steels क्या होती हैं, उनकी mechanical properties क्या हैं, advantages and disadvantages भी discuss किए. And then we discussed about the different types of loads and load combinations कि जब आपके पास लाइव लोड और डेड लोड एक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो लोड फैक्टर्स या सेफ्टी फैक्टर्स हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं. उसके बाद अगर हमारे पास कोई और एडिशनल लोड आ जाता है विंड की शेप में, अर्थक्वेक की शेप में, स्नो की शेप में, हॉरिजॉन्टल लैटरल अर्थ प्रेशर्स की शेप में, तो हम लोड की कॉम्बिनेशंस जो है वो हमारी वेरी हो जाती हैं. तो उन कॉम्बिनेशंस को भी हमने डिस्कस किया. And then we discussed about the various types of design methods, what which basically is the function of LRFD, what is the difference between LRFD and AST. उसके बाद हमने लिमिट स्टेट्स पढ़ी, उसके बाद हमने उसके बाद लिमिट स्टेट्स पढ़े, लिमिट स्टेट के बाद प्लास्टिक स्टेट डिजाइन के मेथड डिस्कस किए. So now in our today's lecture, first of all we will discuss about the introduction about tension members. Tension member क्या होते हैं, then gross area of cross section, net area of cross section, efficiency of a joint and shear leg factors, fasteners and fasteners के दरमियान जो spacing होती है, and then we will discuss about the additional area due to inclined plane. So these are the major contents today we will discuss in our today's lecture. So first of all, now coming back to the topic, what is major difference between compression members and tension members? Keep itself it's resembling from its name. कि members which are subjected to a tensile forces or tensile stresses are known as the tension forces या tension members, and जो members आपके compressive forces को handle करते हैं या उन members के अंदर compressive stresses generate होती हैं, then members will be considered as a compression members. So members basically subjected to axial tensile forces are known as tension members. और जैसे ही tension forces act करती हैं, tension forces यानी कि pulling force, एक body है उसके दोनों end से आप pulling force apply कर रहे हो, body के अंदर elongation generate होती है, that members are known as the tension members. These members tends to elongate on the application of load, वही elongation generate हुई, bending due to simultaneous transverse loads and buckling are significantly reduced, and an initially non-straight members tends to straighten up. कि जब आप फोर्सेस अप्लाई करते हो, इवन नॉन स्ट्रेट मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर elongation की वजह से, बेंडिंग्स की वजह से, एक बकलिंग के प्रेशर्स की वजह से जो मेंबर है वो समटाइम्स स्ट्रेटन अप हो जाते हैं और मेंबर के अंदर एक पुलिंग स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं. Typical examples basically are the members in the trusses. The trusses के अंदर most of the members जो हैं वो tensile stresses को face कर रहे होते हैं. In general, the use of single structural shape is more economical than the built-up sections in the case of tensile members. कि अब जाहिर है built-up section basically हम वही single units को combine करते हैं nut bolt fasteners के जरिए, welding के जरिए. तो एक unit जो है वो basically आपका जाहिर है economical ही होगा. तो बेसिकली हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि डिजाइन स्ट्रेंथ जो आपकी टेंशन की मेंबर्स की होती है वो डिपेंडेंट होती है तीन चीजों के ऊपर. नंबर 1, द यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, कि ग्रॉस सेक्शन आपका यील्ड हो जाता है. सेकंड इज द रप्चर स्ट्रेंथ बेसिकली ऑफ द क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज, कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली उसकी रप्चर स्ट्रेंथ कितनी है. एंड थर्ड केस इज द ब्लॉक शेयर, कि ब्लॉक शेयर की वजह से जो है वो ओवरऑल ब्लॉक शेयर या शेयर की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी रेजिस्ट कर सकता है वो मेंबर. तो जनरली हम जब एक इंडिविजुअल मेंबर्स को यूज करते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स हमारे इकोनॉमिकल होते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ बिल्टअप सेक्शंस अगर आप जाते हो तो बिल्टअप सेक्शंस के अंदर हमें वो चीजें एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं.
हाउएवर हम बिल्ट अप सेक्शन को क्यों प्रोवाइड करते हैं या जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि समटाइम्स जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनकी टेंसाइल कैपेसिटी जो है वो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होती या स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते, या सिलेंडरनेस रेशियो की बात आ जाती है, डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट रिजिडिटी कि स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर सिलेंडरनेस प्रॉपर्टीज जो है वो वीकर है, स्ट्रक्चर बकल हो सकता है, सिलेंडर के फेल्योर के हिसाब से जो है वो शेयर फेल्योर अपीयर हो सकता है। द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग कंबाइंड विद द टेंसाइल बिहेवियर रिक्वायर्स अ लार्जर लेटरल स्टिफनेस, देन वी हैव अ अनयूजुअल कनेक्शन डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। उसके बाद हमारे पास एस्थेटिक्स हैं कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, बाहर की तरफ हमें किस तरह से नजर आ रहा है। तो ये जो हमारे मेजर 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को कवर अप करने के लिए हम वन सिंगल यूनिट सेक्शन से हम बिल्ट अप सेक्शंस की तरफ जाते हैं। नाउ फिगर below shows the cross sectional shapes that are commonly used as tension members। के टेंशन मेंबर्स के अंदर हम वेरियस टाइप्स ऑफ जो सेक्शंस या शेप्स वगैरह यूज करते हैं, उनमें कौन सी हैं, सच एज सिंगल एंगल्स हैं, डब्ल्यू सेक्शंस हैं, चैनल सेक्शंस हैं, और आल्सो क्वाइट ऑफन यूज। किस तरह से यूज होते हैं, लेट्स सपोज वी हैव these are single elements as a round bar, as a flat bar, built up section as a 2 angle section in this shape, also in this shape भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डबल चैनल सेक्शन को आप इस तरह से यूज करते हैं। अब इन सेक्शंस को बिल्ट अप कहने का मकसद कि इनको आप आपस में किसी डिफरेंट प्लेट्स के जरिए, डिफरेंट ब्रेसिंग्स के जरिए, डिफरेंट जो है वो मेथड्स के जरिए इनको आप कंबाइन करते हैं। चैनल सेक्शंस हमारे इस फॉर्म के अंदर भी यूज हुए, इस फॉर्म के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। इवन somehow we have a built up I section also, जिसके अंदर हमने एंगल सेक्शंस भी यूज किए हैं और आई गर्डर भी यूज किया है। उसके बाद हमारे पास 4 एंगल सेक्शन बॉक्स है, जिसको हम एज 4 एंगल सेक्शन को कनेक्ट करके एक बॉक्स बनाते हैं। नाउ दीज आर द टिपिकल सेक्शंस जो कि हम यूज करते हैं फॉर द टेंसाइल या फॉर द टेंशन मेंबर्स, और इनको जो है वो हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज या स्पेसिफिकेशंस के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। सो नंबर 1 मेजर थिंग इज ग्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, कि जो आपने एलिमेंट चुना टेंशन मेंबर के लिए उसका टोटल ग्रॉस एरिया बेसिकली कितना है। ग्रॉस एरिया कहने का मकसद एक प्लेट होती है स्टील की, आपके पास कोई भी एक कंक्रीट का एलिमेंट है, स्टील का है, अगर कंक्रीट के एलिमेंट के अंदर जो हम होल्स वगैरह बनाते हैं उसके अंदर रिइंफोर्समेंट है, कंक्रीट है, तो जॉइंट जो एक कंबाइन के तौर पे मेंबर काम कर रहा होता है। लेकिन स्टील जो है उसके अंदर अगर सरफेस के अंदर या क्रॉस सेक्शन के अंदर आप कहीं पे होल्स बना देते हैं तो वो होल्स बेसिकली एक फेल्यूर जनरेट करा सकते हैं, या उस रीजन को उन्होंने वीक कर दिया जिसकी वजह से टेंसाइल की फोर्सेस की अप्लाई होने की वजह से वहां पे फेल्यूर जनरेट हो सकता है। So if the total area of cross section present throughout the length of the member is known as the gross area of the section, gross area यानी total area of the cross section present throughout the length, the element which are discontinued lengthwise are not included. For example, area of lashing elements and spacer plates is not included in the gross area। जो एडिशनल प्लेट्स हैं बाहर की तरफ से जिसको आप बाइंड कर रहे हो, जिनको आप कंबाइन के तौर पे यूज कर रहे हो, वो यहाँ पे इस ग्रॉस एरिया के अंदर काउंट नहीं है। जो एरिया आपका स्पेसिफिक प्लेट है जिसकी एक ही क्रॉस सेक्शन है, जो एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट आप यूज करने लगे हो, उसका जो टोटल एरिया है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Now the gross area of rolled steel shapes is directly available in the properties table। हम properties से भी निकाल सकते हैं, उनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा, एक हो गया नेट, एक हो गया ग्रॉस एरिया, दूसरा है नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब नेट एरिया और ग्रॉस एरिया के अंदर क्या फर्क है, ये थोड़ी सी चीज समझनी है यहाँ पे। When tension members have holes punched in them for rivets or bolts, the minimum reduced area after the holes are taken out is known as a नेट एरिया। कि एक पूरी लेंथ के हिसाब से आपके पास वेरियस जो लेंथ थी उसके अंदर क्रॉस सेक्शन के पॉइंट पे आपने कहीं पे भी जो एरिया ले रहे थे वो तमाम एरिया यूनिफॉर्म था, वो एरिया हमारा बेसिकली क्या कह रहा था, ग्रॉस एरिया था। अब हमारे उसी जो है वो प्लेट के अंदर आपने कहीं होल्स बना दिए जिनके दरमियान आप 2 प्लेट्स को आपस में कंबाइन करने के लिए नट बोल्ट लगा रहे हो, 2 प्लेट्स को आपस में कंबाइन करने के लिए रिवेट लगा रहे हो, तो वहां पे आपके जो होल्स का एरिया है वो डिडक्ट हो जाता है और जो रिमेनिंग एरिया रह जाता है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ नेट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन।
Failure of tension member always occurs at the weakest section where the cross section is minimum. कि स्टील का जो फेलियर होता है वो हमेशा उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे आपने थोड़ी सी वीकनेसेस वगैरह प्रोवाइड कर दी हैं। फॉर एग्जांपल एक सेक्शन के अंदर आपके 2 सुराख बने हुए थे नट बोल्ट सिस्टम के लिए, तो वो रीजन आपका बेसिकली जो है वो वीकर रीजन कहलाता है, वहाँ पे फेलियर अपीयर हो सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू AISC, American Institute of Steel Construction, the net area of the member is the sum of the products of thickness and the net width of each element. कि width और thicknesses वगैरह को कंबाइन करके हम जो है उसको net area कैलकुलेट करते हैं। So now failure of tension members always occurs at the weakest point जो हमने डिस्कस किया। Similarly, at a connection, if one part of the section is connected while the other is left free, all the forces have to pass through that connection at the joint. For example, in the case, sometimes let's suppose consider in the case of cantilever कि एक एंड जो है वो आपका फ्री है, दूसरा एंड जो है वो फिक्स है, वहाँ पे तमाम स्ट्रेसेस जो है वो फ्री एंड वाली भी फिक्स की तरफ स्ट्रेसेस शिफ्ट हो जाती हैं, मूव हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही केस है कि कनेक्शन इज द वीकेस्ट पार्ट, कि एक एंड अगर आपका फ्री भी है तो उसकी स्ट्रेसेस वगैरह भी उस कनेक्शन ने उठानी है, एंड ने उठानी है। जहाँ पे आपका मेंबर जो है वो फिक्स है, तो आपका जो मेजर ज्वाइंट है बेसिकली दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ वीकेस्ट पार्ट या एज अ सेंसिटिव पार्ट। Now we have a efficiency of a joint and shear leg factor। कि joint हमारा बेसिकली क्या था, वो सेंसिटिव रीजन है, उस सेंसिटिव रीजन के अंदर हमारी स्ट्रेसेस जो है वो ज्यादा अप्लाई होती हैं, तो वहां पे हमने प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है। सो therefore we have to check efficiency of that joint and we have to consider also a shear leg factor। कि ब्लॉक शियर जो हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहा है कि ब्लॉक शियर एक अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, शियर को कितनी रेजिस्ट कर सकती है, तो यहाँ पे आपके पास एक शियर लेग फैक्टर आ जाता है जिसकी वैल्यू हमने ऐड करनी होती है हमारे एलिमेंट्स के अंदर। अवे फ्रॉम अ जॉइंट दिस स्ट्रेस इज स्प्रेड टू गिव अ यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। कि जॉइंट से थोड़ा सा पीछे हटके आपके एलिमेंट्स के अंदर स्ट्रेसेस तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हाउएवर एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट इज डिफाइंड एज हाउ वेल these stresses basically are distributed to transfer the applied forces। कि जॉइंट आपका अगर एक दो रॉड्स को, दो प्लेट्स को आपने कंबाइन किया है आपने एक दूसरे के साथ रख के, तो एक पूरी लेंथ वाइज एक बीम में दोनों के जो सेंटर है बेसिकली वहां पे आपने एक प्लेट के जरिए दोनों मेंबर्स को कनेक्ट किया है आपस में। अब मैं लोड अप्लाई करता हूँ तो स्ट्रेसेस जो पूरे बीम के अंदर ट्रांसफर हो रही है वो इस जॉइंट जहाँ पे आया वहां पे वो जॉइंट के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, या एक एलिमेंट की जो स्ट्रेसेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है अदर एलिमेंट की तरफ थ्रू दिस जॉइंट। If the joint is not fully efficient, premature failure can occur reaching the member strength। अब वहां पे हमारे पास एक मेंबर के ऊपर स्ट्रेसेस ज्यादा आई, उन्होंने जॉइंट ने आपकी वो स्ट्रेसेस को अदर मेंबर की तरफ नहीं पहुंचाया, तो यहाँ पे प्रीमेच्योर फेल्यूर अपीयर हो सकता है, यानी कि हमारा जो है वो डिजाइन स्ट्रेंथ से पहले जॉइंट फेल्यूर अपीयर हो गया जिसकी वजह से मेंबर दोनों भी कोलैप्स कर गए। दिस एक्सपेक्टेड रिडक्शन, इस वजह से हम एक रिडक्शन अप्लाई करते हैं, शियर लेग फैक्टर अप्लाई करते हैं ताकि जॉइंट के अंदर जो एफिशिएंसी है वो हमारी ज्यादा एफिशिएंसी हो। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर कर रहे हैं वहां पे। लेट्स सपोज दिस एक्सपेक्टेड रिडक्शन इज यूजुअली अप्लाइड टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू गेट इफेक्टिव नेट एरिया यूज्ड टू कैलकुलेट द रिड्यूस्ड मेंबर स्पान। अब ग्रॉस एरिया और नेट एरिया को हमने कंसीडर किया था पहले, अब हमारे पास जो है वो शियर लेग फैक्टर की वजह से एक और एरिया आ गया जिसको हमने इफेक्टिव नेट एरिया कंसीडर किया। सो देयरफॉर द शियर लेग फैक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं कैपिटल यू से, इज द फैक्टर बाय विच द नेट एरिया ऑफ द सेक्शन इज रिड्यूस्ड फॉर शियर लेग स्ट्रेस कंसंट्रेशंस एंड इसेंट्रिसिटीज एट द जॉइंट। के जो हमारी स्ट्रेस की कंसंट्रेशंस हैं, इसेंट्रिसिटीज हैं एट द सेंटर के ऊपर, जॉइंट के ऊपर, वो हमने जो है ओवरऑल उनकी स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को कम कंसीडर करने के लिए हमने इफेक्टिव नेट एरिया का कॉन्सेप्ट लगाया। और इफेक्टिव नेट एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बाय कंसीडरिंग द शियर लेग फैक्टर, जिसको हम नेट एरिया से या मिनिमम जो नेट एरिया था उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। So mathematically, these ratios basically can be written as the ratio of effective net area, जिसको हम AE से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, to the net area। ये आपके पास एक रेशियो आ गया, shear leg factor is equals to AE effective net area divided by total net area। However, this expression is used in order कि effective net area आप इसको वाइस वर्सा हम प्ले कर रहे हैं इक्वेशन को दोनों तरफ से। अगर हमने इफेक्टिव नेट एरिया निकालना है तो शियर लेग फैक्टर आपके नेट एरिया से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे हम नॉर्मली सिंप्लिफिकेशंस के अंदर करते हैं।
However, the approximate values for the shear leg factor can be reproduced as number 1 point क्या थी, when tension load is transmitted through each of the cross-sectional elements by fasteners or welds, then we have to consider the shear leg factor is equals to 1. जब आपका दो एलिमेंट्स के दरमियान ज्वाइंट था, एक एलिमेंट से आपकी टेंशन लोड जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू द क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज, होता ज्वाइंट के जरिए से होता, ज्वाइंट आपका फास्टनर्स थे या वेल्ड था, उसके जरिए वो इजीली ट्रांसफर हो गया टू द अदर मेंबर, देन वी विल कंसीडर दिस फैक्टर एज 1, यानी कि नेट एरिया विल बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू द इफेक्टिव नेट एरिया. हाउएवर इन सम केसेस द एक्सप्रेशन फॉर यू फॉर ऑल tension members के shear leg factor for all tension members except plates and hollow structural sections को छोड़ के when load is transferred by all elements of the section is as follows. कि some cases के अंदर जो plates हैं स्टील की या hollow structural members उनको छोड़ के बाकी के cases के लिए आप ये equation यूज कर सकते हैं, u is equals to 1 minus x bar over L, where x is the distance from the centroid of element being connected eccentrically to plane of load transfer called eccentricity, and L is the length of connection center to center of outer rivets holes actual weld length. कि ये फार्मूला यूज करके भी आप u की वैल्यू निकाल सकते हैं shear length फैक्टर की. उसके बाद जो है वो हम इसको कंसीडर करते हैं हमारे एप्लीकेशंस के अंदर इफेक्टिव नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए. तो मजीद जो है वो ये सारी चीज़ें फार्मूलाज वगैरह कैसे हमने यूज़ करने हैं, जैसे हम डिज़ाइन एग्जांपल्स के अंदर आएंगे, सारी चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स बार बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन टू द सरफेस ऑफ दिस डिस्टेंस. बेसिकली ये आपके पास एक्स बार है, ये आपके पास जो है वो ओवरऑल एल है जो एडिशनल लेंथ है उस प्लेट की, और ये आपके पास जो एल है रिप्रेजेंट करा रहा है सेंटर टू सेंटर ऑफ द आउटर होल्स, जो आउटर होल्स के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है एल का, जो कि इसेंट्रिसिटीज वगैरह को कंसीडर करके हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे कि इसेंट्रिसिटी की वजह से ओवरऑल जो हमारे पास एक्स बार पैरामीटर या एल जो पैरामीटर्स हैं उनके जरिए से भी हम एक shear leg फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं. एंड देन वी हैव when tension load transfers by transverse welds, अगर ट्रांसवर्स की डायरेक्शन में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपने वेल्ड्स यूज किए हैं तो आपका इफेक्टिव जो नेट एरिया है वो बेसिकली आपका इस तरह से आप निकालते हो. हाउएवर u की वैल्यू जो है वो उसमें हम 1 कंसीडर कर रहे होते हैं. When two separate plates are connected by longitudinal welds, अगर ट्रांसवर्स वेल्स था तो उस केस के अंदर हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जस्ट u को 1 कंसीडर कर रहे थे, यानी इफेक्टिव नेट एरिया है जो आपका टोटल नेट एरिया है दोनों सेम कंसीडर हो रहे थे. लेकिन अगर दोनों प्लेट्स आपकी कनेक्टेड हैं वेल्ड के जरिए इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर, तो देयरफॉर आपके पास 3-4 कंडीशंस आ जाती हैं कि ओवरऑल जो है वो लेंथ ऑफ द वेल्ड कितना है. अगर वो 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ प्लेट से ज़्यादा है आप 1 वैल्यू कंसीडर करते हो. अगर वैल्यू आपकी इस रेंज के अंदर आ रही है shear leg फैक्टर 0.87 कंसीडर होगा. अगर आपकी जो वेल्ड की लेंथ है वो इस रेंज के अंदर आ रही है तो आपका shear leg फैक्टर जो है वो 0.75 कंसीडर हो रहा है. तो वेरियस वैल्यूज हमारे पास हैं, उसी तरीके से हम जो है वो shear फैक्टर की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. Now number 5 point is for W, M, S, HP, W section, M section, S section basically are representing of I different types of I section members जिनको हम already discuss कर रहे हैं. HP basically is the bearing pile, और T's with flange connected with 3 or more fasteners, उनके अंदर जो I sections हैं या T's हैं या bearing piles हैं उनके अंदर आपके जो टॉप फ्लेंजेस हैं, टॉप और बॉटम फ्लेंजेस, ये अगर कनेक्टेड हैं 3 या 3 से ज्यादा फास्टनर्स से नेट बोल्ट सिस्टम से per line in the direction of loading or by weld, the following 2 approximately conditions will be applied. क्या आपकी ये दोनों conditions हैं कि अगर flanges आपकी 3 या 3 से ज़्यादा fastener से connected हैं in the direction of loading और by welding also, तो आप U की values जो है वो 2 क्राइटेरियाज हैं. एक आप 0.85 ले रहे होते हो इस कंडीशन के अंदर और दूसरे के अंदर जो है वो 0.9 ले रहे होते हो. इसी तरह से अगर W, M, S, HP और T जो है उनके वेब आपस में कनेक्टेड है, वेब के अंदर आपने जॉइंट प्रोवाइड किया है विद 4 और मोर फास्टनर्स पर लाइन, आपका U की जो वैल्यू है shear leg फैक्टर वो 0.7 कंसीडर होता है. Even in the case of for single and double angled sections and built up sections with unconnected parts with 4 or more fasteners in line,
the shear lag factor will be 0.8. For single and double sections with two or three fasteners per line in the direction of loading, the factor shear lag factor will be 0.6. तो ये हमारे पास वेरियस टाइप्स के मेंबर्स हैं बेसिकली, कि आपके पास टी सेक्शंस हैं, आई सेक्शंस हैं, उसके बाद WSM जो है वो बियरिंग पाइल्स हैं, एंगल सेक्शंस हैं, उसके बाद सिंगल एंड डबल एंगल सेक्शंस विद 4 और मोर फास्टनर्स हैं, विद 2 और 3 फास्टनर्स हैं। तो जो कंडीशन हमें स्पेसिफाई की गई कि कौन सी कंडीशन हम यूटिलाइज करने लगे, उसके लिए हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि अगर ये मेंबर्स हैं तो आपने शेयर फैक्टर की वैल्यू इस तरह से चूज करनी है। नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड हियर। इवन अगर हमारे पास चैनल्स आते हैं एंड हॉट रोल्ड स्टील सेक्शंस आर नॉट अबव विद 3 और मोर फास्टनर्स पर लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, आवर फैक्टर विल बी 0.75। तो ये हमारे पास वेरियस डायरेक्शंस और डायमेंशंस के हिसाब से थी कि हम किस तरह से कौन से सेक्शन कौन से मेंबर के लिए किस तरह से हम शेयर लेग फैक्टर की वैल्यू चूज करते हैं। शेयर लेग फैक्टर बेसिकली हमें एक डिफरेंस रेशियो बताता है जो कि इफेक्टिव नेट एरिया एंड टोटल नेट एरिया के दरमियान हम एक जो रिड्यूस करते हैं थोड़ा सा एरिया को, ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है जॉइंट के ऊपर बरकरार रह सके। सो दीज आर हियर एडिशनल डिटेल्स आल्सो, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। सो इफेक्टिव नेट एरिया, अब हमने टोटल नेट एरिया पढ़ा कि टोटल नेट एरिया हो गया, ग्रॉस एरिया हो गया। टोटल नेट एरिया को हमने शेयर लेग फैक्टर से कंसीडर किया जो कि हमारा रिड्यूस्ड एरिया कहलाता है इफेक्टिव नेट एरिया इन द क्रॉस सेक्शन। वो इफेक्टिव नेट एरिया आप ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इफेक्टिव नेट एरिया दैट कैन बी कंसीडर्ड टू रेजिस्ट टेंशन एट द सेक्शन थ्रू द होल्स may be somewhat smaller than the actual net area because of stress concentrations and other factors as we discussed, कि आपकी stress concentrations हैं, eccentricities हैं, उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे दूसरे पैरामीटर्स या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हम टेंशन मेंबर्स के अंदर थोड़े से एरिया को, टोटल नेट एरिया को रिड्यूस एरिया में कन्वर्ट करते हैं। दैट एरिया इज नोन एज इफेक्टिव नेट एरिया। और इफेक्टिव नेट एरिया के अंदर हम शेयर लेग फैक्टर इंट्रोड्यूस करा रहे थे जो कि हमने कंसीडर करना है। फार्मूला ऑलरेडी वही है। नाउ वी हैव अ कैलकुलेशन ऑफ नेट एरिया। ये टोटल हम डिस्कस कर रहे हैं पीछे कि हम इफेक्टिव नेट एरिया और टोटल नेट एरिया को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नाउ रिडक्शन इन एरिया फॉर वन फास्टनर, अगर आप एक फास्टनर यूज कर रहे हो तो उसके लिए एरिया आपका कितना रिड्यूस कंसीडर होगा इन फैब्रिकेटिंग स्टील स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स व्हिच इज टू बी कनेक्टेड विद रिवेट्स और बोल्ट्स। रिवेट और बोल्ट के लिए आप एलिमेंट के अंदर होल्स बनाते हो और जो होल्स होते हैं वो बेसिकली जो रिवेट और बोल्ट होता है उनके डायमीटर से थोड़े ज्यादा होता है। Furthermore, the punching of a hole is assumed to damage or even destroy 0.75 mm or more of the surrounding metal beyond that drilled hole. कि ड्रिल होल जो आपने किया, एक तो आपके एलिमेंट का डाया वहीं पे कम हो गया पूरे स्ट्रक्चरल एलिमेंट का, और दूसरा जो आपने होल बनाया वो होल आपका उस जो नट आपने यूज करना है उससे भी थोड़ा बड़ा होता है, और तीसरा जो ड्रिल होल किया उसके सराउंडिंग में 0.75 मिलीमीटर की जो थिकनेस होती है स्टील लेयर की, प्लेट की, वो भी वीक हो जाती है। सो नॉमिनल होल्स फॉर बोल्ट्स आर गिवन इन टेबल, कि हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बोल्ट का डायमीटर 15 मिलीमीटर है, 18 मिलीमीटर है, 20 है, 25, 27, 30 और मोर देन 35 मिलीमीटर है, तो स्टैंडर्ड होल डायमीटर जो है वो आप कितना प्रोवाइड करते हो कि 15 मिलीमीटर का बोल्ट है तो कम से कम 17 मिलीमीटर का आप एक होल बनाते हैं वहां पर। अगर आपने 19 मिलीमीटर का बनाया तो वो आपका ओवरसाइज डायमीटर कहलाएगा बेसिकली। उसके बाद हम 18 के लिए 20 का जो है वो स्टैंडर्ड होल बनाते हैं डायमीटर का। 18 मिलीमीटर के नट बोल्ट के लिए हम 20 मिलीमीटर का बनाते हैं, और अगर 22 का हो जाता है तो ओवरसाइज कंसीडर होगा। इसी तरह से आप जो है वो अगर 35 से ऊपर है तो डायमीटर ऑफ होल, डायमीटर बेसिकली ऑफ बोल्ट प्लस 3 mm फॉर द होल आप ऐड कर देते हैं, ओवरसाइज जो है 20+8 हो जाएगा। और इसी तरह से जो है वो ये आपके पास डायमीटर ऑफ होल कंसीडर फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशंस, कि हम होल्स की डायमीटर से स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। सो देयरफॉर द डायमीटर ऑफ होल कंसीडर फॉर द स्ट्रेंथ कैलकुलेशंस, कि अब होल का होल स्ट्रेंथ के अंदर कितना है उसके लिए हम क्या करते हैं कि डायमीटर ऑफ रिवेट प्लस 1.5 प्लस 1.5 मिलीमीटर, और डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड बोल्ट होल
डायमीटर ऑफ h जिसको हम होल का डायमीटर कंसीडर कर रहे हैं प्लस 2 mm। ये दो फार्मूलाज हैं। अब पहले फार्मूला के अंदर डायमीटर ऑफ द रिवेट प्लस 1.5 क्या है 2 दफा। सो द डायमीटर ऑफ अ होल फॉर द रिवेट इज d प्लस 1.5 प्लस 1.5, यानी एक जो है डायमीटर ऑफ होल फॉर द रिवेट जो है वो d प्लस 1.5 होता है, यानी कि जो डायामीटर है हमारे नट का बोल्ट का उसका डाया प्लस 1.5, यानी कि होल हमें थोड़ा सा लार्जर चाहिए। Whereas another 1.5 is to be added because this extra portion around the hole may be damaged due to drilling। जो हम पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस कर रहा है कि 0.75 mm सराउंडिंग द होल जो स्पेस होती है वो बेसिकली डैमेज हो जाती है जब आप होल करते हो। तो इस वजह से जो है वो डायमीटर ऑफ रिवेट प्लस 1.5 प्लस 1.5 दोनों बार कंसीडर होता है। And second, area of hole to be subtracted from the width of the cross section is rectangular and equals the diameter of hole times the thickness of the metal। तो ओवरऑल मेटल की थिकनेस उसका जो एरिया होता है ओवरऑल होल का वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है ओवरऑल क्रॉस सेक्शन के अंदर से। तो इनको हम मजीद किस तरह से कंसीडर करते हैं वो डिजाइन एग्जांपल में मजीद आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ द रिडक्शन इन एरिया फॉर वन फास्टनर इज इक्वल्स टू d प्लस 3 into t for rivets or dh plus 2 into t for standard bolt hole where d is the diameter of the rivet and dh is the diameter of hole for the जो है वो bolt, उसके बाद t जो है वो thickness of the plate है। कि हम रिवेट्स को अगर कंसीडर करके करते हैं तो किस तरह से फास्टनर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और अगर हम होल जो स्टैंडर्ड होल हमने बनाया अगर उसको कंसीडर करके करते हैं तो हमारे पास जो है वो फार्मूला है कि रिडक्शन एरिया कितना होना चाहिए ओवरऑल। ये दोनों कंडीशन हम अप्लाई करके अपने डिजाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ वी हैव रिडक्शन एरिया फॉर मोर देन वन होल। अगर एक होल था तो हम रिडक्शन एरिया किस तरह से कंसीडर कर रहे थे। नाउ अगर एक से ज्यादा हमारे पास जो होल्स हैं मोर देन वन होल्स हैं एक प्लेट के अंदर तो उसके लिए हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। फार्मूलाज वही हमने दो फार्मूलाज दिए, यहाँ पे हमने n यानी नंबर ऑफ होल्स का n जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया, नंबर ऑफ होल्स बाकी फार्मूला कंडीशंस वही हैं, फॉर रिवेट के लिए कंडीशन वही है और फॉर स्टैंडर्ड बोल्ट के लिए वही है। वेयर n इज द नंबर ऑफ होल्स इन क्रिटिकल फेल्योर पाथ, t is the diameter of fastener and t is the thickness of the plate। total area basically is equals to reduction area is equals to area net area is equals to gross area minus number of holes d diameter of bolt plus 3 into thickness of the plate। so ये चीजें जो है वो सारी हमारी कंसीडर होती हैं ओवरऑल रिडक्शन इन एरियाज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। For vertical planes, when rivets are used in the above expression, d plus 3 is to be replaced by dh plus 2 for standard bolts। अगर हम vertical planes के failure की बात कर रहे हैं तो above expression के अंदर हम d plus 3 जो है उसको replace कर देंगे dh plus 2 से for standard bolts के लिए। उसके बाद जो है वो AISC की जो limits हैं A and minimum nominal area have to have a maximum of 0.85 gross area, यानी कि टोटल एरिया है वो 0.85 जो है वो उसका मैक्सिमम कंसीडर होगा फॉर स्प्लाइस प्लेट्स विद होल्स स्प्लाइस प्लेट्स के अंदर जो एडिशनल प्लेट्स हम बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट एरिया, नेट एरिया को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो एक्सप्रेशंस फार्मूलाज हम पीछे डिस्कस कर रहा है वो यहाँ से आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन हियर, डिटरमाइन द नेट एरिया ऑफ अ 10 बाय 200 मिलीमीटर प्लेट है। एक हमारे पास 10 बाय 200 मिलीमीटर की एक प्लेट है जिसके अंदर टेंसाइल फोर्सेस या टेंशन मेंबर के तौर पे एक्ट कर रहा है, जिसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, एंड दैट प्लेट इज ज्वाइंड विद 6 into 200 मिलीमीटर प्लेट्स एज शोन इन फिगर। यहाँ पे हमारे पास इस प्लेट को हमने कनेक्ट किया दो प्लेट्स के साथ जिसकी थिकनेस जो है वो 6 मिलीमीटर है और 200 मिलीमीटर उसकी विड्थ है, यानी उसको हमने कनेक्ट किया। यहाँ पे आपको प्लेट्स नजर आ रही हैं और ये जो हमने क्रॉस सेक्शन बनाया जो क्रिटिकल सेक्शन है बेसिकली वो किससे, द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर with 2 lines of 20 मिलीमीटर रिवेट्स, जिनके रिवेट का जो नट बोल्ट है उनका जो डायमीटर है वो 20 मिलीमीटर है और 2 लाइंस के अंदर हम उनको आपस में बाइंड किया है और ईच लाइन के अंदर 4 फास्टनर्स या रिवेट्स हमने यूज किए हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी क्लियर एक इमेज पिक्चर नजर आ रही है। सो नाउ इन द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट
द ग्रॉस एरिया विच विल बी द स्मॉलर ऑफ द ग्रॉस एरिया हमने निकालना है पहले, जो कि स्मॉलर एरिया होगा वो हमने क्रिटिकली कंसीडर करना है हमारे डिजाइन के लिए। जो लार्जर होगा वो हमारा सेफर है, जो स्मॉलर वैल्यू है वो हमने कंसीडर करनी है। सो फॉर एग्जांपल दो प्लेट्स थी, एक हमारे पास मेन प्लेट है, दूसरी हमारे पास जो है वो एडिशनल प्लेट्स हैं जो दोनों हमने कनेक्ट की हैं। सो ग्रॉस एरिया ऑफ द टोटल प्लेट्स बेसिकली विल बी स्मॉलर ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ वन प्लेट इज इक्वल टू 10 into 200 mm, जो हमारी ये प्लेट थी तो हमारे पास 2000 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। और ग्रॉस एरिया ऑफ टू प्लेट्स थी 6 by 200 की, उनका टोटल एरिया जो है वो हमारे पास 2400 मिलीमीटर स्क्वायर आया। इन दोनों में से जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू थी, देयरफॉर द ग्रॉस स्मॉलर वैल्यू इज 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, वो हमने कंसीडर की। द फेल्यूर प्लेन इज वर्टिकल हैविंग 2 होल्स इन इट्स पाथ, कि हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं अगर हमारा क्रिटिकल फेल्यूर यहाँ से अपीयर होता है तो 2 होल्स जो हैं वो उस पाथ के अंदर आ रही हैं, यानी प्लेट की थिकनेस एक तो यहाँ से बच जाती है, दूसरी मिड से, और तीसरी ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा सेंसिटिव है। जो यहाँ पे 2 नट आ गए, ये एरिया हमने रिड्यूस करना है, ओवरऑल निकालना है, क्योंकि हमारा फेल्यूर यहाँ से जनरेट हो सकता है। So therefore the failure plane is vertical having 2 holes in its path and is equals to 2. So therefore net area is equals to gross area minus n d plus 3 into t. So net area is equals to gross area हमारे पास 2000 है, 2 हमारे पास होल आ रहे हैं बीच में। डायमीटर ऑफ द जो थिकनेस है या आपका जो बोल्ट है उसका 20 मिलीमीटर है। उसके बाद जो आपके पास 3 कांस्टेंट है, T is the thickness of the main plate 10 मिलीमीटर है। टोटल आपके पास जो नेट एरिया आ गया वो 1540 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी 2000 मिलीमीटर स्क्वायर की जो एरिया थी प्लेट की मिलीमीटर स्क्वायर की, उसका जो नेट इफेक्टिव एरिया जो यूजेबल है वो बेसिकली आपका 1540 मिलीमीटर स्क्वायर का बच गया। तो ये था हमारा ओवरऑल जो है वो किस तरह से हम नेट एरिया को कैलकुलेट करते हैं व्हाइल एनालाइजिंग अवर डिजाइन एग्जांपल्स। सो अब आते हैं दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर के फास्टनर स्पेसिंग के दरमियान, कि अगर हमारे पास फास्टनर स्पेसिंग 3 किस्म की होती है। नंबर 1 इज द पिच ऑफ द फास्टनर, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द फास्टनर्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड पिच एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एज शोन इन फिगर के अंदर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपके होल्स हैं इनके दरमियान लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये बेसिकली आपका पिच कहलाता है, ये आपका पिच कहलाता है, जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कराते हैं। अब समटाइम्स जो है इनके ऊपर हम बाद में आते हैं, ये द पिच ऑफ द फास्टनर जो डिस्टेंस है वो ये आपके पास आ गया। नाउ सेकंड थिंग इज द गेज डिस्टेंस ऑफ फास्टनर, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द फास्टनर्स अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड gauge denoted by G as shown in figure 2.4. Standard gauge distance of angles and channels are explained in later figures, figure 4 of 2.5 and 2.6. कि अब हम गेज डिस्टेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं कि जब आपका गेज डिस्टेंस ये आपका पास पिच आ गया, जो 2 होल्स हैं इनके दरमियान अगर एक स्ट्रेट डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो तो ये डिस्टेंस जो है वो आपका गेज डिस्टेंस कहलाता है। और थर्ड जो डिस्टेंस है आपके पास स्ट्रेगर, वो डिस्टेंस इन दोनों होल्स के दरमियान जो स्ट्रेट डिस्टेंस बचता है यानी कि बेस डिस्टेंस जो बचता है वो आपका स्टेगर डिस्टेंस कहलाता है। अब होता ये है कि समटाइम्स अगर हम एक प्लेट को टेंसाइल के जरिए खींचते हैं तो समटाइम्स हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो वही है जहाँ पे आपके होल आ जाते हैं। अगर मेरा यहाँ से क्रिटिकल फेल्यूर एक जनरेट होता है तो लेट सपोज हो सकता है कि फेल्यूर जनरेट हो रहा हो यहाँ से सिर्फ एक होल जो है बीच में आ रहा है और फेल्यूर आपका यहाँ से अपीयर हो जाता है। दूसरे केस के अंदर क्या होता है कि समटाइम्स फेल्यूर प्लेन अगर पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ से अपीयर हुआ, इस होल के अंदर आ गया, इस होल से यहाँ पे, इस होल के अंदर, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो यानी कि प्लेन हमारा A to B, फिर B to C, तो देन C to D पोर्शन तक हमारा जो है वो फेल्यूर प्लेन मूव करता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो प्लेन डिस्टेंस है बिटवीन 2 होल्स इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पिच। उसके बाद जो आपका डिस्टेंस है स्ट्रेट डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गेज डिस्टेंस, और स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस बच जाता है ये आपका डिस्टेंस जो है वो बेसिकली एस कहलाता है, जिसको हम स्टेगर ऑफ द फास्टनर्स डिस्टेंस कहते हैं। नाउ यूजुअल गेज फॉर एंगल्स, कि अगर एंगल सेक्शन है तो हम गेजेस को किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं कि लेग डायमेंशंस हमारे पास ये लेग डायमेंशंस हैं 203 मिलीमीटर की डायमेंशन है अगर
लेग है एक, तो हमारे पास जो गेज है वो 114 मिलीमीटर का हो जाता है। इसी तरह से आपके ये लेग के डायमेंशंस हैं और ये आपके डिफरेंट टाइप्स के गेजेस हैं। एग्जैक्टली ये हम अदर डायरेक्शन के अंदर आते हैं तो ये हमारे पास गेज 1 G1 और ये गेज 2 G2 रिप्रेजेंट इस तरह से कराए जाते हैं। तो इससे हम जो है वो एंगल सेक्शंस के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ गेज डिस्टेंसेस वगैरह किस तरह से नोटिफाई कराते हैं। नाउ वी हैव अ चैनल सेक्शंस। अगर चैनल सेक्शन आ जाते हैं तो ये आपके पास एक्चुअल जो स्टैंडर्ड्स की तरफ से सजेस्टेड एक्चुअल फ्लैंज विड्थ्स हैं आपके चैनल सेक्शंस, ये आपके पास डिफरेंट गेज डिस्टेंसेस हैं, ये एक्चुअल डेप्थ्स हैं और ये डिस्टेंस गेज डिस्टेंसेस हैं। गेज डिस्टेंस आपका रिप्रेजेंट करा रहा है इस एंगल से लेके यहाँ तक डिस्टेंस। दूसरा G1 जो है वो बेसिकली यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हो गया। तो जिस तरह का हमारा एलिमेंट है उस तरह के हम मजीद डिस्ट्रीब्यूशंस कंसीडर करते हैं कि जो केजेस बेसिकली डिस्टेंस क्या होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो पिच डिस्टेंस क्या होता है, स्टेगर डिस्टेंस क्या होता है, इनकी जो मजीद डिजाइन एग्जांपल में से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ वी हैव एन एडिशनल एरिया ड्यू टू इंक्लाइंड फेल्योर प्लेन। कि इंक्लाइंड फेल्योर प्लेन, अब फेल्योर प्लेन इंक्लाइंड किस तरह से आया, जैसे हमने डिस्कस किया कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे डिस्कस किया इस एग्जांपल के अंदर कि इंक्लाइंड फेल्योर अगर आ जाता है आपका यहाँ पे इस केस के अंदर, तो हम फेल्योर की वजह से किस तरह से रिडक्शन एरिया कंसीडर करते हैं। हम पिछले वाले एग्जांपल के अंदर क्या था कि नट बोल्ट सिस्टम जो है वो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में थे और वर्टिकल प्लेन फेल्योर अपीयर हो रहा था, तो वहां पे हमारे पास एक फेल्योर अलग किस्म से जनरेट हो रहा था, उसको हमने इजीली आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो अगर यहाँ पे हमारा इंक्लाइंड फेल्योर आ जाता है तो उस केस के अंदर डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंसेस आ जाती हैं, जिसके अंदर पिच डिस्टेंस बेसिकली ये था हमारा, गेज डिस्टेंस ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया और स्टेबल डिस्टेंस हमारा ये वाला डिस्टेंस था। तो जब इंक्लाइंड केस आ जाता है उस केस के अंदर हम किस तरह से रिडक्शन एरिया कंसीडर कर रहे होते हैं या एडिशनल एरिया कंसीडर कर रहे होते हैं ड्यू टू इंक्लाइंड फेल्योर प्लेन। जस्ट लाइक ईच होल इन द पाथ ऑफ फेल्योर प्लेन रिड्यूसेस नेट एरिया इक्वल्स टू s स्क्वायर डिवाइड बाय 4g into t। अब s यहाँ पे बेसिकली जो है वो स्टैगर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करा रहा है, डिवाइड बाय 4 into g is the gauge distance and t is the thickness of the plate is added to the net area। कि टोटल एडिशनल एरिया जो ये वाला रिप्रेजेंट करा रहा है बेसिकली, क्योंकि आपका नेट एरिया रिड्यूस हो चुका है वहां पे, इस वजह से एरिया इक्वल्स टू s स्क्वायर डिवाइड बाय 4g into t is added to the net area for each inclined line is to be assumed as a failure plane। कि हम फेल्यूर कंसीडर करेंगे कि ये फेल्यूर हो सकता है पॉसिबली कि आपका यहां से फेल्यूर अपीयर हो सकता है, यहां से ही दो प्लेन्स के अंदर इंक्लाइन डायरेक्शन में, यहां से फेल्यूर अपीयर हो सकता है इस डायरेक्शन के अंदर, या यहां से फेल्यूर अपीयर हो सकता है इस डायरेक्शन के अंदर। तो हम हर एंगल को, हर फेज को कंसीडर करते हुए उसके वैरायटी ऑफ द जो वो फेल्यूर प्लेन्स में से हम वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। सो इन द केस ऑफ रिवेट्स वी हैव नॉमिनल या टोटल नेट एरिया इज इक्वल्स टू ग्रॉस एरिया माइनस n d+3 into t, जो कि हम प्रीवियस इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट पर्पसेस के लिए कंसीडर करा है वर्टिकल के लिए, प्लस सम ऑफ s स्क्वायर डिवाइड बाय 4g into t। ये टर्म आपका इंक्लाइंड की सरफेस की वजह से, इंक्लाइंड फेल्योर प्लेन की वजह से एक एडिशनल एरिया ऐड हो रहा है। सो फॉर रिवेट के केस में और इवन फॉर द रिवेट के केस में अगर आप विड्थ को कंसीडर कर रहे हो, नेट विड्थ इज इक्वल्स टू एक्चुअल विड्थ n d+3 प्लस सम ऑफ s स्क्वायर डिवाइड बाय 4g। ये आपके पास दिस are must be calculated for all the possible critical failure planes and at least value must be taken। कि ये आप अपने अंदाजे के हिसाब से हर प्लेट के अंदर हर फेल्यूर प्लेन के ऊपर अप्लाई करते हो, उसके बाद जो है वो आप कोई ना कोई एक वैल्यू जो लोएस्ट वैल्यू है वो हमारी एज अ कंसीडर होती है क्रिटिकल फेल्यूर वैल्यू। तो हम वेरियस जो है वो ट्रायल्स करते हैं डिजाइन के अंदर, उसको मजीद वहां से चीजें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। So now we have a typical truss connection as shown in figure 2.7 to explain the position of gusset plate and the fasteners। ये आपको गजट प्लेट एंड फास्टनर्स के दरमियान एक पिक्चर नजर आ रही है क्लियर, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका एंड व्यू है। गजट प्लेट इज द प्लेट टू विच ऑल द ट्रस मेंबर्स आर कनेक्टेड टू अ जॉइंट। ये एक ऐसी प्लेट होती है जहाँ पे हम एक जॉइंट के ऊपर तमाम जो मेंबर्स हैं उसको हम ट्रस मेंबर्स को कनेक्ट कर देते हैं एट जॉइंट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ गजट प्लेट। तो ये हमारे पास एक टिपिकल इमेज था, व्यू था। नाउ द टोटल नेट एरिया फॉर द वेल्डेड कनेक्शंस, अगर हमारे पास वेल्डेड कनेक्शन, ये तो फास्टनर्स आ गए कि नट बोल्ट सिस्टम था उसके अंदर हम किस तरह से ट्रीट कर रहे थे। अब अगर हमारे पास वेल्डेड कनेक्शन आ जाते हैं, इन केस ऑफ वेल्डेड मेंबर्स नेट एरिया एंड इफेक्टिव नेट एरिया आर बोथ कंसीडर्ड इक्वल, सो द ग्रॉस एरिया विद यू शेयर लेग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1।
अब जो पीछे वाले केस थे वहां पे हमारे पास फास्टनेस की वजह से एक रिडक्शन इन एरिया कंसीडर हो रहा था क्योंकि आपके होल्स आ गए थे, लेकिन जब आप वेल्डिंग करते हो प्लेट्स आपकी पूरी कंबाइन की, वहां पे किसी प्लेट के अंदर कोई होल नहीं है, तो इस वजह से जो है वो हमारा कोई भी होल या नेट रिडक्शन या इफेक्टिव नेट रिडक्शन इन एरिया जो है वो कंसीडर नहीं हो रहा था। हम यहाँ पे जो है वो यू या शेयर लेग फैक्टर को 1 कंसीडर करते हैं। So now here we have a total net area for welded connections। अगर हमारे पास welded connections आ जाते हैं उस केस के अंदर हम total net area किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। We have a design example और सारी चीजें आपके staggered distances, fasteners, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। So determine the minimum net area of plate। इस प्लेट का हमने मिनिमम नेट एरिया कैलकुलेट करना है। Where the location of 20 millimeter diameter fasteners is also indicated के 20 millimeter के fasteners की जो diameters हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। So the distance from point A B, ये होल्स आपके बेसिकली लाइन में नहीं है। somehow अगर हमारे पास जो प्लेन में फेल्यूर अपीयर होता है तो इस केस के अंदर भी हो सकता है। अगर आपका फेल्यूर अपीयर होगा तो इस केस के अंदर भी हो सकता है। फेल्यूर आपका अपीयर इस केस के अंदर भी हो सकता है। यानी वर्टिकल के अंदर एक चांसेस है, दूसरे जो है 2 इंक्लाइन डायरेक्शन के अंदर चांसेस हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंसेस हैं बेसिकली A to B डिस्टेंस जो स्ट्रेट है वो हमारे पास 54 है। B to C स्ट्रेट डिस्टेंस 48। उसके बाद A to D स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो हमारे पास जो टोटल है वो हमारे पास 65 प्लस 100 है। A to B वर्टिकल डिस्टेंस 65 एंड A to C वर्टिकल डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारे पास वेरियस डिस्टेंसेस अवेलेबल हैं। 6 मिलीमीटर की एक थिक प्लेट है, A36 स्टील का, 305 जो है वो उसकी विड्थ है, उसके ऊपर एक टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है फोर्सेस जनरेट हो रही हैं। सो हमने जो है वो टोटल मिनिमम नेट एरिया कैलकुलेट करना है फॉर द वेल्डेड कनेक्शंस के केस के अंदर। सो नाउ वी हैव डिफरेंट पाथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पाथ डिसाइड किए कि यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर डिफरेंट वेरियस पाथ्स हैं कि फेल्यूर आपका अपीयर हो सकता है इस केस के अंदर एज अ वर्टिकल प्लेन भी, इस केस के अंदर जो है वो एज अ इंक्लाइन प्लेन भी, और इस केस के अंदर जो है वो आपका ABC डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपका एक फेल्यूर अपीयर हो सकता है इन केस ऑफ इंक्लाइन डायरेक्शन भी। तो हम वेरियस जो है वो सरफेसेस के हिसाब से हमने फेल्यूर कंसीडर किए। लेट सपोज फर्स्ट पाथ इज A to D कि हमारा पहला जो फेल्यूर है वो A to D आ रहा है जो कि वर्टिकल फेल्यूर है। A नेट एरिया इज इक्वल्स टू ग्रॉस एरिया माइनस n नंबर ऑफ होल्स, D प्लस 3 डायमीटर ऑफ द जो रिवेट या फास्टनर प्लस 3 इनटू thickness of the member या thickness of the plate। nominal area या net area is equals to gross area 6 by 305 minus 2 holes, D diameter of the rivet 6 millimeter की जो हमारी प्लेट की thickness है। total area we got 54 millimeter square। now secondly we have a path of ABD, A, B and D this direction inclined direction के अंदर अगर फेल्यूर अपीयर होता है उस केस के अंदर हमारे पास जो टोटल फार्मूला जनरेट हुआ A net area is equals to gross area minus n number of holes, D plus 3 into D this was a vertical equation formula plus sum of जो कि additional area consider हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास inclined surface plane आ गया तो वहां पे sum of s square divided by 4g into T। S is the staggered distance divided by 4g is the gauge distance into T is the thickness of the plate। कि हमारे पास staggered distances वगैरह क्या आ रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स सपोज हमने कंसीडर किया ग्रॉस एरिया 6 into 305 n नंबर ऑफ होल्स। नाउ A B D सरफेस के अंदर हमारे पास 3 होल्स आ जाते हैं, एक दूसरा और ये तीसरा A B D, और यहाँ पे हमारे पास S और G डिस्टेंसेस की वैल्यू भी आ जाएंगी। तो कैसे निकालते हैं कि -3 into 20 plus 3 into 6 is the thickness of the plate। अब S डिस्टेंस स्टेगर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ स्टेगर इंक्लाइन पोर्शंस 2 हैं। कैसे 2 हैं? एक आपका इंक्लाइन पोर्शन A to B है, दूसरा इंक्लाइन पोर्शन B to D है। तो इस केस के अंदर हमारा जो S डिस्टेंस है A to B 54 है, 54 और गेज डिस्टेंस जो है वो कितना है 65। तो यहाँ पे आते हैं डिजाइन इक्वेशंस के अंदर कि वी हैव अ स्टेगर डिस्टेंस ऑफ 54 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू G गेज डिस्टेंस वी हैव अ 65। ये आपका A to B गेज डिस्टेंस 65। और इसी तरह से अगर हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं, सेकंड इंक्लाइन पोर्शन जो कि हमारा वही है कि स्टेकर डिस्टेंस आपका 54 है लेकिन गेज डिस्टेंस जो है वो आपका चेंज होता है। स्टेकर डिस्टेंस यहाँ से
बी से लेके डी तक ये डिस्टेंस आपका, बेसिकली इस इंक्लाइन पोर्शन के लिए ये आपका स्टेगर्ड डिस्टेंस कितना है, बी टू डी पॉइंट तक हमारा 54 है, और बी से लेके डी तक स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो हमारा वर्टिकल 100 है। तो सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली यहाँ पे, टोटल जो 54 स्क्वायर्ड बाय 4 into 100 एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 6। वी गॉट टोटल नेट एरिया फॉर द पाथ ABD is equals to 1527 मिलीमीटर स्क्वायर। तो पाथ पहले के अंदर 54 था मिलीमीटर स्क्वायर, दूसरे के अंदर 1527 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब थर्ड जो हमारा पाथ है वो बेसिकली ABC पार्ट है, जिसके अंदर फेल्यूर आपका इस रीजन के अंदर टोटली इंक्लाइन कर रहा है, मूव कर रहा है। फार्मूला वही है, कंडीशन वही है। फर्स्ट के अंदर जो A to B पॉइंट है, दिस इज अवर स्टेगर डिस्टेंस एंड दिस इज अवर जो है वो गेज डिस्टेंस, and B to C this is our sticker distance and this is our gauge distance। तो formulas conditions वही है, सिंपल आपने जस्ट वैल्यूज को पुट किया है यहाँ पे, 54 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 into 64 प्लस 48 स्क्वायर बाय 4 into 100, टोटल जो डिस्टेंस एरिया आया वो 18 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एक एरिया हमारे पास कितना था 1554, दूसरा एरिया था 1527, तीसरा एरिया है 1518 मिलीमीटर स्क्वायर। वी विल बी कंसीडर द लीस्ट वैल्यू अमंग दीज व्हिच वाज द 1518 मिलीमीटर स्क्वायर, सो वी कैन से दैट दिस एरिया विल बी द डिजाइन्ड एरिया फॉर और कंट्रोल्ड एरिया फॉर आवर सेक्शन। नाउ असाइनमेंट नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट इज टेंशन मेंबर्स, कि टेंशन मेंबर क्या होते हैं एंड व्हाट आर द एंड हाईलाइट द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स which faces the tensile stresses in real life, कि रियल लाइफ के अंदर कौन से वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं और उनको हम कंसीडर करते हैं एज अ टेंशन मेंबर्स। एंड इन सेकंड क्वेश्चन डिफरेंशिएट द ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया इन स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट्स, इनको डिफरेंशिएट करना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर द ब्रीफ रिपोर्ट फॉर दिस होल लेक्चर इंक्लूडिंग द डिजाइन एग्जांपल्स। इस पूरे लेक्चर की एक समरी बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, एंड डिजाइन एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो है वो डिस्टेंस, जो फास्टनर्स के दरमियान डिस्टेंसेस हैं, पिच डिस्टेंस क्या होता है, गेज डिस्टेंस क्या होता है, स्टेगर डिस्टेंस क्या होता है, और जो है वो अगर फेल्यूर प्लेन आपका वर्टिकल है तो हम किस तरह से फेल्यूर प्लेन को कंसीडर करते हैं, और अगर इंक्लाइंड है तो किस तरह से कंसीडर करते हैं। तो दिस होल लेक्चर विल बी समराइज्ड और उसको मेमोराइज भी करना है ताकि जो कमिंग एग्जांपल्स हैं उनको हम इजीली समझ सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।